Okay, so in my last lecture, we have discussed about this basis of charge. Okay, let be a minute. In my last lecture, we have discussed about this basis of charge. Okay, so in this basis of charge, we have discussed about the I hope the material is in your hand. Okay, so હું કોઈ પોઈન્ટર આમાં નહીં આવતો જે યુડીઆઈ નું લિસ્ટ છે ને એમાં પોઈન્ટ નહીં આવતો એમજીડી 7 આવશે એમાં બાય ડિફોલ્ટ 8 આવશે ના બરાબર જોઈએ કરી દે હેલો યસ so in last lecture we have discussed about this basis of charge. Okay, so basis of charge I have discussed with you. So in that we have covered that what is taxable under this head. Okay, so we were discussing that dividend winning from lottery, sum received from employees, interest on debenture, government securities is taxable. Suppose if you receive the letting out of the rental matlab let out the plant machinery and furniture, and if any income is arise from that, that is also taxable. Rental income from letting out of plant and machinery along with the building, but both lettings are not separable. This point we have discussed. We also discussed the amount received under the Keyman insurance policy. Okay, यहाँ से मैंने बाकी रखा था कि money received, any sum received, yes, यहाँ से बाकी रखा था that any sum received or property, any property received without consideration or inadequate consideration. मतलब ये, can you see this? Hello? Yes, sir. Okay, yes. Yes, sir. Material also may be in your hand. So point number 8, if money or property received without consideration or for inadequate consideration, इसको simple language में अगर हम बोले तो इसको कहते हैं हम gift. It is known as the gift. गिफ्ट का पॉइंट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो ये पढ़ रहे हैं कि अंडर द हेड income from other sources which incomes are taxable. So this point we are discussing. So the money received without consideration is popularly known as gift. Now what is the taxability of the gift? Okay, that we will going to discuss in detail again. Okay, but just right now we are understanding that which incomes are taxable under the head income from other sources. So here it is mentioned that if you receive any money or property without consideration, आपको कुछ भी अगर किसी को कुछ दिए बिना मुफ्त में मिलता है तो दैट इज ऑल्सो योर इनकम. ओके, इट इज नोन एज अ गिफ्ट. ओके, अगर किसी से भी आपको गिफ्ट मिला, द गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड, इट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. सेम वे सपोज इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन compensation or enhanced compensation. Okay, this point also requires a detailed discussion. At the later stage it is discussed, but see what is the interest received on compensation or enhanced compensation. Right now we just understand कि suppose if you have selling some, you sold some property to the government, मतलब लैंड और बिल्डिंग आपने गवर्नमेंट को बेचा, ठीक है, और गवर्नमेंट का पैसा आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल जाता. सपोज मेरी कोई लैंड थी, गवर्नमेंट ने ले ली, हाईवे जा रहा था उधर से लैंड ले ली. ओके, सो लैंड इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, और इफ वॉट एवर लैंड इज एक्वायर्ड, तो उसका पैसा मुझे तुरंत नहीं मिलेगा, उसका पैसा मुझे 1 साल 2 साल के बाद मिलेगा. तो जब वो पैसा गवर्नमेंट देती है तो जो एग्रीड प्राइस है, सपोज 1 लाख रुपया उसने देने के लिए बोला था, तो वो 1 लाख तो मुझे देगा, लेकिन 1 साल जो उसने मुझे जो डिले पेमेंट किया उसके लिए वो मुझे इंटरेस्ट देगी. सपोज इफ यू रिसीव एनी इंटरेस्ट, ये पॉइंट आगे डिटेल में डिस्कस किया गया है, बट सी राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि सपोज इफ यू हैव रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट
On the compensation or NN compensation, it is taxable. Okay, now suppose no, the next point is share premium in excess of the fair market value of the shares. So suppose if you a company is there and company has issued the shares, okay, और कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो उसको कौन सी प्राइस से शेयर इश्यू करने चाहिए? फेयर मार्केट प्राइस से। ओके, अगर फेयर मार्केट प्राइस से ज्यादा उसने चार्ज किया तो दैट वुड बी टैक्सेबल। इसके भी सम्स है, हम आगे देखेंगे। अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि ये हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही है। तो आप अभी इतना याद रखें कि इफ यू हैव रिसीव्ड द शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू देन इट इज टैक्सेबल। इसके भी सम्स है, पॉइंट नंबर 9 के भी सम्स है, पॉइंट नंबर 8 के भी सम्स है, तो आप डिटेल में समझोगे आगे। राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट व्हिच इनकम्स आर टैक्सेबल। देखो पॉइंट नंबर 11 का भी सम्स है कि सपोज इफ यू रिसीव्ड एनी एडवांस, okay, or otherwise then in course of negotiation or transfer of capital asset, okay, देखो सिंपल लैंग्वेज में हमारा तुमने समझाया दो कि व्हाट इज दिस पॉइंट नंबर 11 कि सपोज आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोला है, ओके, कि सपोज लैंड और बिल्डिंग किसी को बेचने के लिए आपको बोला है कि मैं आपको बेचूंगा, वो बोला है कि मैं आपसे खरीदूंगा। अभी क्या होता है कि अगर आपने कोई घर या प्रॉपर्टी को बेचने के लिए रखा है तो काफी सारे कस्टमर आते रहते हैं, तो जिसको भी पसंद आता है वो क्या करता है, उसको पसंद आता है तो ही gives you some advance। આપણે ગુજરાતીમાં એને આપણે કહીએ બહાના કરી નાખે, બહાનું આપી દીધું। ओके, तो वो सपोज समझ लो मुझे 1 लाख रुपए दिखेगा कि भाई हेमंत भाई मैं आपसे ये घर खरीदूंगा और मैंने 1 लाख रुपया लिया उससे। अभी बाद में वो आया ही नहीं, बाद में वो आया ही नहीं क्योंकि उसको घर चाहिए नहीं, और उसने जो 1 लाख दिया था वो मैंने रख दिया, तो दैट 1 लाख इज ए इनकम। ओके, तो सपोज आपने कुछ एडवांस लिया इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और इफ दैट एडवांस इज फॉरफिटेड बाय यू, ओके, देन दैट इज any amount देखो received or otherwise then in negotiation or transfer of capital asset if such amount is forfeited, अगर वो अमाउंट आप जब्त कर लेते हो, वो लेने नहीं आया क्योंकि उसने लिया नहीं, मैंने दूसरे किसी को घर बेच दिया, उसने बोला था कि મહિનામાં હું તમને બીજા પૈસા આપીને ઘરનો સોદો કરી દઈશ, એ મહિનામાં આવ્યો જ નહીં, 5 મહિના પછી આવ્યો તો પૈસા હું શું કરીશ कि पैसा હું મારા રાખી લઈશ અને घर બીજા કોઈને વેચી દઈશ। तो ये होता है कि अगर आपने कुछ नेगोशिएशन में पैसा ले लिया है तो दैट इज ऑल्सो योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सपोज इफ यू रिसीव एनी कॉम्पेंसेशन पे और एनी अदर पेमेंट ड्यू और माइक अपना साइलेंट। Okay, so yes, I was discussing with you कि अगर yes, this is the point कि suppose any compensation or any other payment received directly or indirectly by any person in connection with the termination of his employment or modification in the terms relating thereto, if it is not taxed under the salary income। देखो जनरली क्या होता है कि सपोज आपको कोई जॉब से निकाल देता है, टर्मिनेशन कर देता है, ठीक है, तो जॉब से एकदम निकाल देता है तो आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देता है, एकदम कल के कालती ना इसलिए लाख रुपया ले जा कालती ना होता, तो इट इज अ कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन अगर आप रिसीव करते हो इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज नॉट अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट यू हैव ऑप्शन, यू कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो। ओके, तो अदर सोर्सेज में भी ये इनकम को अगर ये इनकम सैलरी में टैक्स नहीं हुई है then and then that income will be taxable under their income from other sources, otherwise not। ओके, देखो इसके अलावा भी ये पूरा एक लिस्ट दिया है कि these are also income। देखो ये 12 इनकम मैंने आपसे जो डिस्कस की, देखो डिविडेंड इफ यू रिसीव डिविडेंड हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अगर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर टाइम लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझाया था कि सपोज इफ यू रिसीव दी any contribution from say employee it is taxable under their either other sources or capital PGBB। आपको दोनों में से जिसमें भी टैक्सेबल करना है कर सकते हो। सपोज इफ यू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, तो ये सभी पॉइंट्स के सम्स एक एक पॉइंट के हैं।
Suppose if you let out the plant, machinery and building, plant and machinery, okay, then rent you are receiving this taxable. Suppose if you receive a rental income of plant, machinery and building, but both lettings are not separable. Okay, अगर दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते तो entire income is taxable under that income from other sources. Suppose if you receive any sum under the given insurance policy, okay, that also I have discussed with you, that is also taxable under their income from other sources. अभी आपको मैंने बताया कि if you receive a gift, the gift is also taxable under their income from other sources. Suppose if you receive the dividend, sorry, interest, okay, और on enhanced compensation, वो मैंने आपको बताया वो गवर्नमेंट वाला एग्जाम, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले लेती है और अगेंस्ट दैट इट गिव्स द compensation along with the interest. Compensation is taxable under their capital gain. But suppose if you receive the interest, then interest will be taxable under these. Okay, suppose if you issue the shares more than the fair market value, for this we will solve the example, don't worry. Then in money received as an advance, okay, अगर आपका वो negotiation के इसके भी sums है, point number 12 के भी sums है, okay, so this all are the income which are taxable under the income from other sources. So as I told you, we will first of all discuss that which incomes are taxable, okay, which incomes are taxable under the head income from other sources, which incomes are taxable under the head income from other sources. ये हम पढ़ रहे हैं. तो seeing that I have discussed with you that these are the 12 incomes which are always taxable under the income from other sources. ठीक है, देखो वही जो ऊपर हमने पढ़ा वही पॉइंट है और उसके साथ साथ कुछ नए पॉइंट है कि these are also other income. ओके, ये भी कुछ ऐसी इनकम है जो अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल होती है. तो किस ये 12 ऊपर जो इनकम बताई उसके अलावा भी कुछ इनकम यहाँ पे दी गई है. ओके, तो दिस इनकम्स आर आल्सो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देखो ये जो ऊपर 12 पॉइंट्स हैं ना, सी फॉर इन रिलेशन टू दैट देयर विल बी एग्जांपल्स, देयर विल बी अ मतलब डिटेल डिस्कशन. और ये इनकम सिर्फ आपको एक बार पढ़नी है. यू मस्ट नो दैट दीज आर आल्सो इनकम व्हिच इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो देखो नॉर्मल इनकम in other incomes which are normally included in the income from other sources. ओके, देखो ये सभी इनकम नॉर्मली ये हेड में ही टैक्सेबल होती है. तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द अदर इनकम which are normally chargeable to tax under the head because it is not covered in any other head. तो ये कुछ ऐसी इनकम्स है, मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में एक फंडामेंटल रूल तो बता दिया कि यहाँ कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है. तो एक तो ये 12 इनकम का मैंने आपको लिस्ट बताया, ये 12 इनकम तो टैक्सेबल होगी. इसके अलावा कोई भी इनकम है, ओके, अगर वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं है और इफ इट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड, नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड. तो देखो ये 12 इनकम तो हमने देख ली कि दिस इनकम्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लेकिन इसमें जनरली कौन कौन सी इनकम आती है जो दूसरे हेड में कवर नहीं होती है और उसकी वजह से ये हेड में टैक्सेबल होती है. So these are the certain incomes, the list of certain incomes are given which is not get covered in any other head. That's why it is taxable under the head income from other sources. Okay. So see, let us discuss. देखो, first income from subletting of house property by a tenant. Okay. So suppose if you earn the income by subletting the house property. Okay. तो subletting क्या होता है कि suppose see मैं किसी से suppose Mr. X is a owner of house. ठीक है, मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ हाउस और मैं हूं मिस्टर वाई और देयर इज वन अनदर पर्सन से मिस्टर जेड. 3 पर पार्टी है. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज सबलेटिंग. यू अंडरस्टैंड कि मिस्टर एक्स के पास एक घर है, उसने आपको 50,000 रुपये में किराए में दिया. नाउ सपोज मिस्टर एक्स इज रिसीविंग द इनकम फ्रॉम दैट हाउस. सी फॉर मिस्टर एक्स इट इज टैक्सेबल अंडर व्हिच हेड? अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ दिस हाउस. हाउस प्रॉपर्टी वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो मिस्टर एक्स के लिए इनकम रेंट से आने वाली मिस्टर एक्स के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी. नाउ सपोज आई हैव रिसीव्ड दिस हाउस फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹50,000. मैंने इससे 50,000 रुपये में किराए में लिया. लेकिन मैंने क्या किया, तो ये घर मैंने खुद रहने के लिए नहीं यूज करता, ये घर मैंने 60,000 रुपये में मिस्टर वाई को किराए पे दे दिया. Now suppose I am here earning this 60,000 rupees. Okay, देखो 60,000 नहीं कमा रहा हूँ,
क्योंकि 60 लेके 50 तो मिस्टर एक्स को मैं पे कर रहा हूँ. ओके, तो 50,000 तो मेरा खर्चा हो जाता है, और अल्टीमेटली हाउ मच प्रॉफिट आई एम अर्निंग? 10,000. नाउ दिस 10,000 इज ऑल्सो आई एम अर्निंग फ्रॉम द हाउस, बट विल इट बी टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट ए ओनर. मैं ओनर नहीं हूँ, इसीलिए भले वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, बट दैट इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम house property. So for Mr. Y, this income will be taxable under which head? Under the head income from other sources. So this is called income from subletting. सबलेटिंग की इनकम क्यों अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है? बिकॉज यू आर अ टेनेंट, एंड एज ए टेनेंट इफ यू लेट आउट योर द प्रॉपर्टी व्हिच यू हैव टेकन ऑन अ रेंटल बेसिस टू समवन एल्स, see it is not taxable in your hand because you are not owner, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, but see for you that income will be taxable under the head income from other sources. ओके, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. ठीक है, तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल. तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, देखो ये भी एक इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है. इनकम फ्रॉम सबलेटिंग. हाँ हाँ मतलब जस्ट मिनट बेटा, पासवर्ड अंदर हसे मेसेज में ये यू कर एक मिनट है, होल्ड करिए. टू मिनट्स वेट. Dhoni accurate 180. Now see, I was discussing with you. Hello. Hello. You are right. Hello. Hello. Am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Now see, this is also one of the income which is taxable under their income from other sources is the casual income. Okay, casual income, you know that winning from lotteries, crossword puzzles, that I have already discussed with you. Okay. Then see, suppose if you are receiving the insurance commission, suppose आप insurance agent हो, okay, and if you are earning the commission from the insurance, so whatever commission you are receiving, it depends कि where it will be taxable. Suppose समझ लो a full time insurance agent हो, or if you are receiving the commission, see for you it is taxable as a business income under their profit and gains of business and profit. Suppose if you are doing the part-time insurance agent activity, okay, so whatever you are receiving insurance agent commission, then it will be taxable under their income from other sources. Okay, then it will be taxable under the head income from other sources. Okay, then suppose if you receive the family pension. Okay, देखो family pension क्या होता है? Suppose a pension, there is a difference between these two words, pension and family pension. ठीक है,
Suppose the person is alive, and so far as he is alive and he is receiving the pension after his retirement, it is known as pension. Suppose I am retired from the MS University, and so far as I am alive, और तब तक मुझे तो पेंशन मिल रहा है, for me it is treated as a income from salaries, and it is taxable under their salaries. But suppose after my death, if my family, suppose my wife is receiving the pension, then it is known as family pension. उसको pension नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? Family pension. Now see here, suppose समझ लो my wife is receiving the pension from MS University. Okay, तो यहाँ पे देखो सैलरी में कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल होती है when the relationship between the payer and payer is the employer employee relationship. जब तक मैं जिंदा था employer employer relationship was exist, the income was taxable under their salaries. But suppose after my death, suppose my wife is receiving the pension, she is not an employee, but she is receiving the pension from my employer. So employer employee relationship is not exist. So now see, suppose the family pension is received by the family member of the deceased person, then whatever family pension is received by the family member, it will be taxable under their income from other sources. So suppose after the death of a husband, if the wife receives the pension, then whatever pension is received by the wife will be taxable in the hands of wife under the head income from other sources. Okay. Mari? Okay. Okay, now let us discuss the next point. Suppose director sitting fees attending the board meeting. Suppose समझ लो कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर है, और एज ए डायरेक्टर इस डायरेक्टर क्या होता है कि डायरेक्टर को कंपनी में बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी होती है. ओके, तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की डायरेक्टर को कंपनी फीस देती है. वो फीस को कहा जाता है सिटिंग फीस. ठीक है, सिटिंग फीस. नाउ सपोज द सिटिंग फीस इज रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर. सी, अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस रिसीव किया करता है, डिपेंड्स इन ऑन सिचुएशन. अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी है, और अगर एज ए एम्प्लॉय अगर वो रिसीव करता है सिटिंग फीस, उसके लिए वो कहाँ टैक्सेबल, अगर वो एम्प्लॉय है तो अंडर देयर सैलरी. लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं भी होता, डायरेक्टर मे नॉट बी एम्प्लॉय. ओके, तो अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, in that case, suppose if you receive the sitting fees as a director, it will be taxable under their income from other sources and not under the head salaries. Okay, suppose if you receive the director's sitting fees as a director, it is taxable under their income from other sources. Now suppose if you receive the interest on bank deposit or deposit with the companies or loan, suppose if you have given the loan to someone else, और suppose आपके पैसे बैंक में पड़े हैं और कोई दूसरी कंपनी को आपने लोन दिया है. ओके, और वो द मनी इज लाइंग, सपोज इफ यू हैव गिवन द लोन टू समवन, और सपोज इफ your deposit is lying in the bank, and on that suppose if you receive the interest. So suppose if you are receiving the interest on your deposits, or suppose if you have given the loan to someone else, and on that if you receive the interest, see whatever interest you are receiving, see suppose किसी को लोन देना आपका बिजनेस नहीं है, so whatever interest you are receiving, that interest will be always taxable under their income from other sources. Okay, now the next point of discussion is suppose interest received on the delayed refund. Okay, ये इनकम टैक्स का पॉइंट है कि इनकम टैक्स में आपको क्या होता है कि इनकम टैक्स में आप टीडीएस के फॉर्म में या तो फिर एडवांस टैक्स के फॉर्म में आप चालू प्रीवियस ईयर में ही आपका कुछ टैक्स भरते जा रहे हैं. ठीक है, फिर क्या होता है कि असेसमेंट ईयर जब आता है तो असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल करते हो और फिर आपका टैक्स कैलकुलेट करते हो. आपने प्रीवियस ईयर में समझ लो ये टीडीएस के फॉर्म में, एडवांस टैक्स के फॉर्म में आपने 30,000 टैक्स भर दिया, और आपने एक्चुअली कैलकुलेट किया तो आपको पता चले यार मेरे को तो 20,000 टैक्स ही आता है. तो वो केस में इनकम टैक्स आपको क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गिव दी रिफंड ऑफ ₹10,000. ये 10,000 रिफंड तो करेगा, लेकिन सिर्फ रिफंड नहीं करेगा, रिफंड के साथ आपको इंटरेस्ट भी देगा. देखो, रिफंड यू आर गेटिंग, दिस इज नॉट योर इनकम. તમારા પૈસા કોકના આપે તે તમને પાછા મળે, इट इज नॉट इनकम. પછી ये सपोज समझ लो 10,000 उसने लेट रिफंड किया और उस पर आपको 500 रुपये इंटरेस्ट दिया, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफंड. सो सपोज इफ यू रिसीव द डिलेड refund, and for that if you receive an income,
एंड दैट इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोज इफ यू रिसीव द इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इफ द इनकम इज नॉट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो कि रॉयल्टी इनकम में भी दो पॉसिबिलिटी है। देखो रॉयल्टी जनरली किसको मिलती है कि रॉयल्टी इज रिसीव्ड बाय द जनरली ऑथर, सिंगर, ये सब लोगों को, उसने कुछ बुक लिखी है, सिंगर ने कोई गाना गा के रिकॉर्ड किया, उसको उसको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, अभी समझ लो ये बुक लिखना या सिंगिंग करना, इसका मेन काम ही वही है। पूरे साल वो सिर्फ बुक लिखता है या सिंगिंग करता है, तो उसको रॉयल्टी मिलती है। तो इट इज बिजनेस एंड इट इज टैक्सेबल अंडर विच, इट इज टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबी। बट सपोज समझ लो ये ऑथर और सिंगर पार्ट टाइम है। सपोज समझ लो ये आई एम अ टीचर एंड सी पार्ट टाइम में एक अभी इनकम टैक्स की बुक लिख दी, और सपोज आई एम रिसीविंग एज ए ऑथर एनी रॉयल्टी। देखो अभी यहाँ ये बुक्स लिखना मेरा बिजनेस नहीं है, बट टाइम था मैंने बुक लिखा और सी आई हैव रिसीव सम रॉयल्टी इनकम। नाउ सी टू आई एम नॉट अ ऑथर बट सी it is not my business. Now suppose here I am receiving the royalty, then this royalty will be taxable under the head income from other sources. तो ये royalty मेरी income from other sources में taxable होगी। ठीक है, सेम वे डायरेक्टर कमीशन फॉर स्टैंडिंग एज ए गारंटर टू द बैंकर। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी होती है, लाइक सपोज समझ लो ये कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को लोन चाहिए। ओके, अभी ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की कोई मार्केट में इमेज इतनी अच्छी नहीं है कि कोई उसको लोन दे, लेकिन एबीसी लिमिटेड का एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, ही इज वेरी गुड इमेज, ही इज वेरी गुड नेटवर्क ऑल्सो। ओके, तो इसकी नेटवर्क अच्छी है, उसकी इमेज अच्छी है, तो ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जब उस बैंक को अप्रोच किया तो बैंक ने बोला कि हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को लोन तो देंगे लेकिन ये मिस्टर एक्स गारंटी दे दो। तो मिस्टर एक्स गारंटी देता है कि यू गिव द लोन एंड इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन आई विल रीपे द लोन। समझी लो, बैंक लोन कोने आपसे कंपनी ने પૈસા કંપની જોવા પડશે અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ કંપની જ બેંકને પે કરશે। ત્યાં સુધી મિસ્ટર એક્સને કોઈ લેવા દેવા નથી। પણ જો ઇન કેસ કંપની ફેલ્સ ટુ રીપે ધ લોન then as a guarantor Mr. X is liable। तो Mr. X is taking the risk, और वो रिस्क लेने के लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा कि હું ગેરંટી તો આપું પણ મને જે કંઈ પણ તમારી લોન છે ને એના 2% કમિશન આપશો। હવે સપોઝ સમજ લો કંપનીને 1 કરોड़ की लोन ली, तो उसने 2% कमीशन का 2 लाख रुपया ले लिए। ओके, तो 2 लाख रुपीज इज रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर व्हाट, फॉर गिविंग दी गारंटी टू दी बैंक। ओके, for a loan to the company। So suppose this kind of guarantee if you are receiving, sorry, if you are given as a director in the capacity of director and if you are receiving any commission, then that is also taxable under the income from other sources। देखो अगर ये अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। ओके, तो अगर अनडिस्क्लोज सोर्स क्या होता है कि ये आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न में तो बताते ही नहीं है, बट अगर आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आस्किंग दैट एट फ्रॉम वेयर दिस मनी हैज कम, and if you are unable to answer this question or unable to identify the source that from where that money has come, then it is treated as income from undisclosed sources। and income from undisclosed sources जो होता है income from undisclosed sources, okay, मतलब जिसका आप सोर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, income from undisclosed sources। ओके, तो ये जो भी इनकम है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल, दे कंसीडर्ड एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज में अनडिस्क्लोज इनकम टैक्सेबल होती है। ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल कंसीडर दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। The next income which is taxable under their income from other sources is remuneration received by member of parliament। अगर कोई member of parliament है, MP है, अगर उसको गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन देता है, ओके, उसको लाइक एमपी एमएलए सबको ये गवर्नमेंट खुद रेम्यूनरेशन देती है। तो देखो ये इनका जॉब नहीं है, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नॉट गेट एग्जिस्ट, बट स्टिल इसको रेम्यूनरेशन वर्ड भी आई डोंट थिंक दैट इट इज राइट, ऑनोरेरियम बोलते हैं कि दैट ऑनोरेरियम दे आर रिसीविंग।
लाइक सपोज कोई एमपी एमएलए कंटेस्ट करता है और वो इलेक्शन जीत जाता है, तो उसके बाद उसको गवर्नमेंट ऑनरेरियम देती है। ओके, वो 5 साल के लिए उसको सपोज उसका टर्म है तो 5 साल तक नहीं, उसके बाद भी उसको कंटिन्यूअस लाइफ टाइम ऑनरेरियम मिलता रहता है। ठीक है, so whatever honorarium you are receiving, that you are not receiving from your employer, but you are receiving from government for providing your services to the government, okay, or to the society. तो जो आपको पैसा मिलता है तो एज ए एमपी एमएलए whatever honorarium you are receiving will be taxable under their income from other sources. सेम वे अगर आपने देखो फॉरेन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन की कोई सिक्योरिटीज बाय की है और उस पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला तो दैट इंटरेस्ट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, नाउ सी सपोज डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडरराइटिंग द शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। अगर समझ लो कोई नई कंपनी है और उसके शेयर आपने मार्केट में इश्यू किए और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वो शेयर पब्लिक खरीदे ना भी खरीदे, तो कंपनी का कोई एक डायरेक्टर बोलता है कि यू ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक और पब्लिक नहीं बाय करेगी तो बाकी के जितने भी शेयर्स है मैं बाय कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। ओके, तो सपोज फॉर अंडर राइटिंग इफ द डायरेक्टर हैज रिसीव्ड एनी कमीशन ओके फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी से ही कमीशन लेता है, कंपनी का डायरेक्टर बोलता है कंपनी के शेयर अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूंगा और फॉर दैट ही हैज रिसीव्ड 5% कमीशन। Okay, whatever commission he has received will be taxable under the head income from other sources. ठीक है, तो if as a director if you receive the commission for underwriting the shares, that will be also taxable under their income from other sources. ठीक है, now see exam fees received by the teacher from the institution other than employer. Okay, so suppose teacher is receiving the exam fees for assessing the paper or for drafting the paper whatever, so it is taxable under their income from other sources if he has received from the other than employer. Like suppose समझ लो कि I am assessing the paper for the MS University and if I receive the exam fee for assessing the paper, okay, so this is not taxable for me under the head other sources because I am receiving from my employer. So for me employer relationship is exists, so for me it is taxable under their salary. समझ लो मैं ही टीचर हूँ लेकिन अभी मैं एमएसयू के लिए नहीं, सपोज आई एम असेसिंग द पेपर फॉर आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंने सपोज कुछ पेपर चेक किए और फॉर दैट दे आर पेइंग मी एग्जाम फीस। ओके, तो यहाँ पे देखो वट एवर आई एम रिसीविंग दैट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा? क्योंकि देखो आईसीआई इज नॉट माई एम्प्लॉयर, ये मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। और ये क्यों सैलरी में टैक्सेबल होगा? क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉयर है। ओके, तो दिस माय एम्प्लॉयर, सपोज एम्प्लॉयर से एग्जाम फी रिसीव करते हो सैलरी में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से एग्जाम फीस रिसीव करते हो इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सेम वे रेंट रिसीव फ्रॉम दी वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड। देखो अगर आपके पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, देखो ये प्लॉट ऑफ लैंड है ना, वो कैसा है? वैकेंट है, मतलब खाली ही पड़ा रहता है और कभी कभार उसको आप रेंट पे दे रहे हो। तो समझी लो इट इज अ राइट एग्जाम्पल કે ભાઈ નવરાત્રી ચાલુ છે ને અમારી પાસે ગ્રાઉન્ડ પડી છે ને કોને 1 લાખ રૂપિયામાં નવરાત્રીની સીઝન માટે ભાડે આપ। હવે ભાઈ रिसीव द रेंट, देखो ये प्लॉट को किराए पे देना मेरा धंधा नहीं है। ओके, बट सी वो वैकेंट पड़ा रहा है और उसको मैंने किसी को रेंट पे दिया नहीं था ऑन द इनकम, देन दैट इज टैक्सेबल अंडर फॉर मी अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ देखो देखो इसको हमें धंधा बना देते हुए रेंट, ये प्लॉट है इसको मैं पार्टी प्लॉट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं रोज किसी को किराए पे देने का धंधा करता हूँ, तो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबी। बट इफ द प्लॉट इज वैकेंट, देखो दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द वैकेंट। इफ द प्लॉट इज वैकेंट एंड ऑन वैकेंट लैंड प्लॉट इफ यू लेट आउट एंड फ्रॉम दैट इफ यू रिसीव द रेंट इट इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, देखो यू नो दैट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट इन इंडिया। ओके, एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होगी तो इनकम एग्जम्प्ट होगी। वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट इन इंडिया, बट फॉर टू बी अ taxable exempt what is the requirement?
in India, agriculture income is exempt only if the land or agricultural land is situated in India. मतलब જે લેન્ડમાંથી તમને એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ થાય છે that land should be situated in India. वो इंडिया के अंदर वो लैंड सिचुएटेड होनी चाहिए, तो ही एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। अगर समझ लो आपकी लैंड फॉरेन में सिचुएटेड है, सपोज यूएसए में आपकी कोई लैंड है और वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, एंड फ्रॉम दैट इफ यू अर्न द इनकम, इट बी एग्जम्प्ट, आंसर इज नो, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होगी। तो वो इनकम क्या होगा, वो टैक्सेबल। इफ इट इज टैक्सेबल, where it is taxable, it is taxable under that income from other sources. So the income will be taxable under that income from other sources. ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रांटिंग द माइनिंग राइट्स। ओके, सपोज समझ लो कि आपके पास कोई माइन है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी का कोई माइन है, सपोज वहाँ से कुछ निकल रहा है। जनरली क्या होता है, माइन जब बनता है तो उसको गवर्नमेंट ले ही लेता है कि सपोज तुम्हारी जमीन में कहीं निकले तो गवर्नमेंट ले लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लैंड लाइक ये कुछ जैसे लिग्नाइट निकलता है, कॉल निकलता है, वो केस में आपका खुद का भी माइन हो सकता है, समझ लो। और आपका खुद का माइन है और वो माइन का राइट आपके पास है, सबको समझ लो। सॉरी सॉरी सॉरी, गवर्नमेंट के पास माइन जो होता है ना, वो गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। और ये यहाँ से कुछ कॉल निकालना है, यहाँ से सोना निकालना है, हीरा निकालना है, जो भी है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से टेंडर मंगवाती है, ठीक है। उसका टेंडर लगता है, उसको ये माइन मिल जाती है, फिर उसको क्या करना है, वो माइन करके यहाँ से जो भी मिनरल है वो निकालता है, देन ही सोल्ड। ओके, सपोज समझ लो आपने टेंडर भरा और आपको राइट मिल गए, और वो राइट को क्या कहा जाता है, माइनिंग राइट। ओके, और अभी आपने सोचा यार कि हमारी में वो બધું કાઢી લીધું, હવે મારે નથી કાઢવું। ओके, तो यू गिव योर राइट टू समवन एल्स, तो आपका जो राइट है वो किसी और को आप दे देते हो। और जब राइट दिया, उसको बोला कि तुझे मुझे साल के 5 लाख रुपए दे देने हैं, यू यूज द माइन एंड यू extract the mineral from the mine. In that case, suppose if you receive the income from granting the mining right to someone else, so whatever income you are receiving, that is taxable under the income from other sources. Same way, interest paid by the government on excess payment of advance tax. कभी कभी क्या होता है, देखो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई अगर आपने एडवांस टैक्स एक्सेस पे कर दिया, ज़्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट आपको वो एडवांस टैक्स आपने ज़्यादा पे किया ना, वो बाद में रिफंड करेगी। तो करेगी तो इंटरेस्ट के साथ रिफंड करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर। सेम वे, suppose if you have withdrawn any amount from the NSS, मतलब नेशनल सेविंग स्कीम, ओके, तो सपोज देखो नेशनल सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसके अंदर जब पैसे भरते हो, ओके, दैट इज एग्जाम, मतलब उसका आपको डिडक्शन मिलता है। नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते हो, ओके। इन केस ऑफ NSS 1987 एंड स्कीम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर टैक्सेबल, बट सी इन केस ऑफ NSS स्कीम 1992 ओनली इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन विड्रॉल। भी देखो NSS स्कीम जो है उसमें क्या होता है कि आपके पास पैसा है तो नेशनल सेविंग स्कीम, और नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर आप पैसे भरते रहते हो, तो क्या होता है कुछ सालों के बाद आपको वो पैसे वापस मिलेंगे विथ इंटरेस्ट। तो देर आर टू स्कीम इन इंडिया, NSS स्कीम 1987, तो 1987 वाली स्कीम के अंदर आपने पैसे भरे, और व्हेन यू विड्रॉ, तो क्या होगा, देखो जब आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था तो आपने ETC में डिडक्शन क्लेम किया था। व्हेन यू विड्रॉ, तो क्या होगा, 87 वाली स्कीम में NSS का पैसा आप विड्रॉ करते हो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों टैक्सेबल होता है। फिर गवर्नमेंट की एक NSS की 1992 की स्कीम आई और उसमें पैसे भरे हैं, और व्हेन यू विड्रॉ, in that case only interest is taxable on withdrawal. Okay, then see, next last point is advance received or retained on or after 1/4/2019 in course of negotiation or transfer of capital city। यही पॉइंट है ये वाला नेगोशिएशन वाला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि આપણે કોઈને લેન્ડ કે બિલ્ડિંગ વેચવાનું કીધું હોય ને પછી આપણે એની પાસેથી બાનાખત કરીને પૈસા લીધા હોય, પછી એ ના આવે તો આપણે જપ્ત કરી લીધા, ધેટ ઇઝ वो फोरफीचर की बात है। ओके,
वॉट एवर एडवांस यू आर रिसीव एंड विच इज नॉट मटीरियलाइज, मतलब यू हैव फॉरफिटेड द अमाउंट, देन दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर। काफी ऊपर वाले पॉइंट भी यहाँ रिपीट हुए हैं। ओके, लेकिन इसके लिए सम्स है, तो इसमें कोई चिंता नहीं, ये वाला पॉइंट हम सम करेंगे। लेकिन ये जो इसके ऊपर के जितने पॉइंट आपको एक बार पढ़ना है, यू मस्ट नो दैट दीस ऑल आर आल्सो इनकम व्हिच इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, नाउ देखो ये 12 पॉइंट जो पहले हमने पढ़े थे वो 12 पॉइंट डिटेल में डिस्कस किए। So these 12 points which I have discussed, that which incomes are taxable or always taxable under the income from other sources. So dividend, winning from lottery, sum received. तो ये सब जो पॉइंट है ना, these points are now explained in a detail. तो ये पॉइंट हमें डिटेल में पढ़ने। ओके, so now the next point of discussion is a dividend and deemed dividend. Okay, the next point of discussion is a dividend and deemed dividend. I'll stop my lecture at 7:15, so don't worry if you have to go for the Navratri. Okay, I'll stop my lecture at 7:15 और कल से थोड़ा जल्दी रखेंगे। तो आपका ये जो नवरात्रि का जो डिस्टर्बेंस है, काफ़ी स्टूडेंट ने आज मुझे मैसेज किया कि सर ऐसा मत करो, तो ठीक है कल थोड़ा जल्दी रखेंगे। तो 7:15 आई विल क्लोज, बट लेट इज कंप्लीट दिस वन पॉइंट। ओके, देखो ये पॉइंट जो पूरा बहुत डिटेल में दिया है, डीम्ड डिविडेंड। पहले हम डिविडेंड समझ लेते कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या है, वो आपको मैंने आगे भी समझाया है। ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी टीच यू अबाउट द डिविडेंड, वी हैव डिस्कस्ड। देखो व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। अभी नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी बहुत क्लियर है कि सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड, देखो ये आगे मैंने पढ़ा दिया कि सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड, तो से डिविडेंड आपको मिल रहा है कि सपोज इफ यू हैव रिसीव द डिविडेंड। देखो डिविडेंड आपको इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, आपको डिविडेंड मिला है, या तो फिर आपने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है और डिविडेंड मिला है, या तो फिर आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई आपके पास कोई शेयर है उस पे डिविडेंड मिला है। बट सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड, देन व्हेनेवर यू रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल नाउ। ओके, पहले वो एग्जम्प्ट होता था, अभी वो टैक्सेबल हुआ, और वो टैक्सेबल होगा तो वो हमेशा कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, तो डिविडेंड विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डिविडेंड हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले ईयर में ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, सपोज इफ यू रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम दी फॉरेन कंपनी, सपोज समझ लो आपके पास फॉरेन की कोई कंपनी के शेयर है और फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और वहां से फॉरेन से डिविडेंड आता है, क्या ट्रीटमेंट होगी, तो भी वो टैक्सेबल होगा। और वो टैक्सेबल कहाँ होगा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब व्हेनेवर फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स यू आर रिसीविंग द डिविडेंड, नाउ द डिविडेंड इज कंपल्सरीली टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। Okay, now the point which is given in your material is not dividend, it is a deemed dividend. Section 2 subsection 22 ने deemed dividend का कॉन्सेप्ट है। Now see deemed dividend क्या है वो आप समझ लीजिए, और suppose if you receive the deemed dividend, then deemed dividend taxable होता है। Whenever you receive the deemed dividend is taxable। देखो कोई एक पहले deemed dividend कैसे अराइज होता है मैं आपको बताऊँ, और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये deemed dividend को टैक्सेबल करना था। आपको पता है कि अप टू लास्ट ईयर डिविडेंड जो होता था, अप टू लास्ट ईयर डिविडेंड वाज एग्जम्प्ट। लास्ट ईयर से ये टैक्सेबल हो गया। ये डिविडेंड क्यों एग्जम्प्ट होता था, तो उसके पीछे यही लॉजिक था कि जब कंपनी डिविडेंड पे करती थी तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी वाज पेइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी, इसीलिए कंपनी वाज पेइंग द टैक्स एंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इट वाज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए वो टैक्सेबल था, सॉरी शेयर होल्डर के लिए वो एग्जम्प्ट था। तो डिविडेंड वाज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओके, तो डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले कंप्लीट। पहले क्या होता था, देखो सपोज द कंपनी की ये बैलेंस शीट है और कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया, अगर कंपनी प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो कंपनी को क्या करना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ता था।
तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वी विल नॉट पे एनी डिविडेंड। तो डिविडेंड का पेमेंट क्या था, बहुत कम कंपनीज ऐसी थी जो डिविडेंड पे करती। तो डिविडेंड अगर कंपनी नहीं पे करती तो उसका यहाँ पे जनरल रिजर्व में रिटेन अर्निंग्स में पैसा बढ़ता जाएगा। ये पैसे पे पूरा हक किसका है? देखो ये पैसा शेयर होल्डर का ही है, ये पैसा शेयर होल्डर का ही है, लेकिन आपने इकट्ठा कर दिया, उसको दिया नहीं, और यहाँ ये जनरल रिजर्व इकट्ठा होता रहा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ इनकम टैक्स वी कॉल्ड इट एज ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और કંપનીનો પ્રોફિટ હોય એના પર કંપનીનો કોનો હક હોય? કંપનીના પ્રોફિટ પર હક કોનો હોય? કંપનીના શેર હોલ્ડર। ઓકે, તો શેર હોલ્ડરનો હક હોય હજુ એને આપ્યું નથી, પણ જ્યારે પણ આમાંથી કોઈ પણ ફોર્મમાં તમે જો એક રસ્તો, સીધો રસ્તો કયો છે કે યુ પે ઇટ એઝ એ ડિવિડન્ડ, અને ડિવિડન્ડ તરીકે આપ્યા તો હવે તો સિમ્પલ ક્લિયર થઈ ગયું कि इफ द डिविडेंड इज पेड नाउ द डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बट अगर इकट्ठा कर लिया हुआ प्रॉफिट है कि आपने पास्ट में डिविडेंड दिया ही नहीं और यहाँ पे प्रॉफिट इकट्ठा किया, और सपोज आपने डिविडेंड नहीं दिया लेकिन अलग अलग तरीकों से आप शेयर होल्डर को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप शेयर होल्डर को ये पैसा दे रहे हो, ये सभी तरीके हैं, उसको हम कहेंगे डीम्ड डिविडेंड। ओके, तो डीम्ड डिविडेंड अल्टीमेटली इट इज नथिंग, it is a distribution of accumulated profit otherwise than by the dividend। डिविडेंड के तरीके के अलावा दूसरे कोई तरीके से आपने शेयर होल्डर को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देने की कोशिश की तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 it is treated as a deemed dividend, and suppose the deemed dividend is received by you then deemed dividend is also taxable। देखो इसको मैं वन बाय वन ओरली, मतलब आई एम नॉट रीडिंग इट फ्रॉम लाइन टू लाइन, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि ये डीम्ड डिविडेंड क्या है। मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया है कि सपोज कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बहुत इकट्ठा हो गया है, उसमें से उसने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन दूसरे कोई तरीके से पैसा उसने शेयर होल्डर को देने की कोशिश की, तो दैट इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। उसको हम डीम्ड डिविडेंड काले नहीं आओ काले सोम मंगल અને બુધ 3 દિવસ નહીં આવે કાલે yes please। तो डीम्ड डिविडेंड is there। डिविडेंड किसको कहेंगे? जैसे these are the various ways through which the dividend is, मतलब accumulated। just a minute। એ વાંધો નહીં, ચાલો ઓલ ધી બેસ્ટ। और પછી આઈને ખ્યાતિ લેજે થોડા દિવસ। तो डीम्ड डिविडेंड किसको कहते हैं कि व्हेन यू पे द accumulated profit to the shareholder under the different ways then that is called deemed dividend and it is taxable। देखो अभी वन बाय वन हम देखते हैं। 222 ये क्या कहता है कि dividend includes any distribution of asset by the company to its shareholder to the extent of accumulated profit of the company whether it is capitalized or not। समझो कि कंपनी ने क्या किया कि सपोज यहाँ पे प्रॉफिट इकट्ठा किया है और ये प्रॉफिट में से कंपनी ने अलग अलग एसेट बाय की, और कंपनी क्या करती है अपनी एसेट ही अपने शेयर होल्डर को दे रही है। ओके, कंपनी ने ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से असेट बाय की और असेट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर कंपनी ने असेट डिस्ट्रीब्यूट की तो वॉट एवर असेट इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर इट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एंड विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, देखो when the assets are distributed at the market value of the asset on the date of distribution has to be taken as a computation of dividend। अगर समझ लो असेट दी, सपोज समझ लो कि कंपनी की कोई असेट है, कोई मशीनरी, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दे दी, तो व्हाट विल बी द इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो वो जो भी असेट थी उसकी मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दैट विल बी द इनकम। तो कंपनी ने क्या किया, अपने पास बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा है, टाइम था डिविडेंड का, डिविडेंड नहीं दिया, अभी कंपनी ने क्या किया उसके पास असेट थी, तो असेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दी। शेयर होल्डर के लिए अगर रिसीव किया है तो इट इज ट्रीटेड एज इनकम, it is taxable in the hands of shareholder। ओके, और क्या टैक्सेबल होगा? द अमाउंट
टू द एक्सटेंट इट इज मार्केट वैल्यू जो है उसकी, जो प्लांट मशीनरी उसकी मार्केट वैल्यू है, दैट इज ट्रीटेड एज इनकम। ओके, सेकंड पॉइंट, any distribution to its shareholder by a company as a debenture or deposit certificate in any form, or any distribution to its preference shareholder of shares by way of bonus to the extent accumulation profit of the company। ओके, मतलब समझ लो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी के पास बहुत सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट में से कंपनी ने क्या किया कि प्रॉफिट में से ही ये प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, और कंपनी ने प्रॉफिट का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसमें से प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए, या तो फिर डिबेंचर इश्यू कर दिए। किसको? जो शेयर होल्डर है उसको। ठीक है, तो शेयर होल्डर को कंपनी के प्रेफरेंस शेयर मिल गए, शेयर होल्डर को कंपनी का डिबेंचर मिल गया। ओके, और यहाँ से कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम होता है। तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड की जगह कंपनी ने अपने खुद के शेयर्स दे दिए, और वो भी कौन से वाले? प्रेफरेंस शेयर्स या तो फिर डिबेंचर। तो इन दिस वे द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द डिबेंचर और preference shares by, मतलब accumulated profit is distributed by way of debenture or preference share, then whatever value of that preference share or debenture is that is treated as income in the hands of shareholder, or deemed dividend is it is treated as a deemed dividend and taxable in the hands of shareholder। Okay, same way देखो, any distribution to the shareholder company at the of the company on its liquidation to the extent accumulated profit, okay, immediately before its liquidation whether or not it is capitalized। ये पॉइंट क्या कहता है थर्ड, कि अगर कंपनी ने समझ लो यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठा होता रहा, कंपनी ने कभी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, और अभी कंपनी बंद हो जा रही है, तो बंद हो जाती है तो आपको पता है लिक्विडेशन प्रोसेस, कंपनी की सभी एसेट बेच दी जाती है। और हेलो, हाँ हेलो, हेलो, यस, हेलो, कोई बोल रहा था बीच में? यस, अमीषा। I can't listen you. Okay, let me complete this point. We'll conclude the lecture. Hello. Okay. So dividend, if the company डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, अगर कंपनी क्या हो करती है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो बंद होती है तो भी शेयर होल्डर को उसके पैसे वापस दिए जाते हैं। जो पैसा उसको वापस दिया जाता है वो इनकम नहीं। सपोज कोई कंपनी में मैंने 100 रुपया रोका था और कंपनी मुझे मेरे 100 रुपये ही वापस देती है, तो दैट इज नॉट माई इनकम। तुम 100 की जगह 500 वापस दिए, मतलब 400 रुपया मुझे ज्यादा मिला, और वो कंपनी ने कहाँ से दिया? आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वट एवर आई एम रिसीविंग एडिशनल, ओके, तो दैट इज ट्रीटेड एज माई इनकम। ओके, कभी कभी कंपनी क्या करती है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है, कि कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। ओके, और अब शेयर होल्डर को उसके पैसे वापस दे देती है कंपल्सरीली, उसको चाहिए या नहीं चाहिए, बायबैक नहीं, वापस करती है, और प्रॉफिट में से वो शेयर वापस ले लेती है। कंपनी इज गेटिंग बैक इट्स शेयर, और इट गिव बैक द मनी टू द शेयर होल्डर। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आपने 100 रुपया दिया है, और जब आपको वापस पैसा मिलता है तो 500 1000 रुपया मिलता है, तो दैट एडिशनल मनी यू आर रिसीविंग, दैट कंपनी गिव्स यू आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एंड दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज इनकम। ओके, सेम में समझ लो, अगर कंपनी कैसी है, देखो ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, सभी कंपनी के लिए नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली कंपनी विच इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अभी क्लोजली हेल्ड कंपनी किसको कहेंगे? ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर क्या करती है, वो लोन देती है किसको? टू दी शेयर होल्डर। और कैसे शेयर होल्डर को? कि जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है। ओके, और या तो शेयर होल्डर को नहीं देती तो कोई दूसरे कोई कंसर्न को देती है,
जहाँ पे such shareholder is the shareholder or a partner or member, or see that partner is the shareholder is having a substantial interest. Suppose shareholder ने ना આપો પણ બીજી કોઈ કંપની ને આપે તો કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મને તમે લોન આપો ને એ પાર્ટનરશિપમાં પેલા જે શેર હોલ્ડર છે 10% કરતા વધારે વાળો એનું સબસ્ટેન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ છે. or to any person on behalf of shareholder, or shareholder ના behalf પર કોઈને પણ તમે લોન આપો. Okay, suppose if you give the loan or if you have given all this out of what, out of the accumulated profit. तो suppose कंपनी अपने शेयर होल्डर को भी लोन देती है out of the accumulated profit, then that is also treated as an income in the hands of shareholder. Okay, and it is taxable. देखो the same whatever point I have discussed with you, it is summarized in this table. Okay, कि अगर कंपनी अपनी असेट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इट इज द इनकम. कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मतलब असेट नहीं देती लेकिन उसकी जगह डिबेंचर सर्टिफिकेट या प्रेफरेंसेस या देती है, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. इट इज कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड. अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे असेट बेच के शेयर होल्डर को पैसे देती है या तो फिर असेट देती है, दैट इज द इनकम. अगर कंपनी कैपिटल रिडक्शन करती है और शेयर होल्डर को उसका पैसा देती है, दैट इज आल्सो इनकम. अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये लोन देती है, कि लोन जनरली इनकम नहीं होती है, लेकिन अगर कंपनी ने लोन दिया कहाँ से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, किसको, तो शेयर होल्डर को. कैसे शेयर होल्डर को, कि जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है, ऐसे शेयर होल्डर को अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से लोन दिया, सच लोन विल बी आल्सो टेकन एज इनकम. तो फ्यू पॉइंट्स आर रिटन हियर. तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में है, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ ઇઝ નોટ એક્યુમ્યુલેટેડ પ્રોફિટ. એક્યુમ્યુલેટેડ પ્રોફિટ એટલે એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ જે વર્ષોથી ભેગો થયેલો છે. અગર શેર તમે પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કરે અને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ તમારા પાસે પડ્યું, ઇટ ઇઝ નોટ એક્યુમ્યુલેટેડ પ્રોફિટ. ઓકે, એક્યુમ્યુલેટેડ પ્રોફિટ કઈ તારીખનો તમારે કન્સિડર કરવાનો તો ઓન ધ ડેટ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ઓકે, અગર ટ્રેડ એડવાન્સ વુડ નોટ ફોલ વિધિન ધ એડમિટ ઓફ ધ વર્ડ એડવાન્સ. અગર કોઈ શેર હોલ્ડરને તમે નોર્મલી કોને જોડે શેર હોલ્ડર છે ને તમારો સપ્લાયર પણ છે ને તમે એડવાન્સ આપ્યા तो ये आ कैटेगरी में नहीं फॉल है. ओके, and if the loan or advance is deemed as a dividend and further company declares the accumulate actual dividend, such adjusted against the loan or advances, okay, is not liable to tax again. Suppose समझी लो कि कंपनी 1 लाख रुपया ની લોન આપી શેર હોલ્ડર ને, ઓકે, જેની પાસે 10% કરતા વધારે वोटिंग राइट्स है. तो लॉजिकली શું થશે કે 10% मतलब सपोज 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख इज अ इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. कारण કેમ તો કે સબસ્ટેન્શિયલ શેર હોલ્ડર છે ને એક્યુમ્યુલેટેડ પ્રોફિટમાંથી 10 લાખની લોન લીધી તો શેર હોલ્ડર માટે ટેક્સેબલ છે. હવે કંપની શું કરે છે, એ જ વર્ષે કંપની ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરે છે, બધા શેર હોલ્ડરને ડિવિડન્ડ આપે છે, પેલા ભાઈને નથી આપતી. કેમ તો કે એને ઓલરેડી લોન આપી છે તો એને ડિવિડન્ડ સામે એડજસ્ટ કરી છે. તો શું થશે, એને ઓલરેડી ડિવિડન્ડ જે લોનના ફોર્મમાં लोन लीधी तेना पर टैक्स भरी दीधो है. तो अगेन नाउ द डिविडेंड इज गिवन, डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल. So the same thing is mentioned here. Okay, these few examples are that based on the point number 1 deemed dividend के कुछ example case studies है that we will going to discuss tomorrow. Okay, right now I am concluding my lecture. See, hardly 3 to 4 lectures are required to complete this income under the income from other sources. So every day I'll take 1 hour lecture, okay, and for 2, 3, 4 days, and we'll complete this. Okay, so you or will tomorrow take the lecture little early, not at 6 o'clock, so you can go in the Navratri also, or you can enjoy the Navratri also. Okay, so right now I'm concluding my lecture. Thank you very much to all of you. I'll stop this after your recording is get downloaded. So if you want to leave this, you can leave. Okay, happy Navratri to all of you. Okay, goodbye, good night. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Nice. Thank you, sir. Okay, beta. સર કાલનો ટાઈમ ગ્રુપમાં કહી દેશો ને તમે વહેલા. હું કંઈક રાખીશું 5:30 થી 6:30 એવું રાખીશું તો કોઈને નવરાત્રીમાં ડિસ્ટર્બ ના થાય. ને આઈ વિલ ઇન્ફોર્મ યુ. કાલે તો કોલેજ આવીશ જ ને એટલે વીલ મીટ એન્ડ વીલ ડિસ્કસ ધી ટાઈમ.
and at that time I'll take the lecture. Otherwise, the recording is available to you. Okay, in your group after 15-20 minutes you will get the recording. So those who cannot attend, they can refer the recording. Okay, but for 3-4 days you have to come here for the extra lecture. Okay, and in that I'll complete the syllabus. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Bye, sir. Good night, beta. Bye, sir. Bye. Bye. કાલથી તું કલાક ઘરે જતો આવીશ નહીં લેક્ચર લઈને પછી પાછો આવીશ એટલે ઓફિસમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે મને એક કામ કરે કેટલા વાગ્યા સુધી આવવાના કેટલા વાગ્યા સુધી તમે કયો એવું